A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have started the your new session of economics class 12. So in the last classes we have already discussed the first the I think 3 chapter we have already completed. First chapter, that is introduction. Second, we have discussed the circular flow of income, in which we have discussed the how the money or the income will circulate in the uh, different sectors like the producing sector, income and by the expenditure. Okay. Third, we have discussed the national income. What is national income? What is domestic territory? What is the basically the who is citizen? Who is the normal resident of the country? What is depreciation, investment, market price, factor cost, net indirect tax? We have already discussed, and how we convert GDP at NP. So, how we convert the GDP at MP to NNP at MP, how we convert GNP at FC to NNP at FC or the NNP at NP. So, different concept converting the GDP at MP to NNP at FC. We have already discussed all these things. So, what we have to do in that case? So, GDP at MP is equal to NNP at FC. So, what we have to do? Here we have to calculate the gross. So, in that case, we will add the depreciation, and then we have to calculate here domestic. So, D, so minus, एंड हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पे हमें हमारे पास ये वैल्यू दी है और ये कैलकुलेट करना है. तो डोमेस्टिक मतलब NFI है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. और यहाँ पे कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस. सो प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. NIT is net indirect tax. Okay, ये सारे क्या हैं आपके कन्वर्जन के हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है. एंड आफ्टर दैट वी आर स्टार्टेड टू chapter 4, that is measurement of national income. So in this, what we have already discussed, first of all we have there are 3 methods of the calculating the national income. First one is value added method, and it is also called the production method. Second, we have discussed about the income method, which we have already completed in the next class. Next and the third one and the third last of calculating the income, national income is the expenditure method. So we have already discussed value added method, production method, what is the formula, what are the different precautions which we have to take while solve the questions. Next we have discussed the income method, formula, as well as the what are the different precautions that we have to take in while calculating the national income. And the third one is, that is expenditure method, that we are going to discuss in the today's class. That is, what is the meaning of the expenditure method, how we calculate the expenditure method, the different questions related to the, which is based on the calculating national income by the expenditure method, what are the different precautions that we have to take in while calculating the national income. So in today's class we are going to discuss about the expenditure method. Okay, so let's get started. Okay,
So let's start with the expenditure method. ओके, सो इसमें लिखते हैं सो मेथड फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम. सो कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द जीडीपी एट एमपी. जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो क्या मेजर करता है कि जो भी हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो ऑन दी जीडीपी एट एमपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. सो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, किसी भी 1 ईयर में कितना फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है. सो फाइनल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कंजप्शन एंड द इन्वेस्टमेंट. कि जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर किस पे होता है, बेसिकली वी हैव ऑल डन ऑन दी कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर. जो भी कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी हम लोग कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. सो यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ actual expenditure on the goods and services for the final use by all the 4 sectors functioning in the economy. So national income measure क्या करता है कि उस पॉइंट पे मेजर करता है जहाँ पे एक्चुअल हम लोग एक्सपेंडिचर देख रहे हैं किसका गुड्स एंड सर्विसेज का. बेसिकली वो एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, 4 सेक्टर्स जो भी इकोनॉमी में है वो कर रहे हैं. सो 4 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से हैं, 4 सेक्टर. पहला है आपको हाउस होल्ड सेक्टर, पता है आपको, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर. सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर और फार्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर. थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर. एंड द लास्ट वन इज दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि जो 4 सेक्टर्स हैं किसी भी इकॉनमी में, वो जिस पे भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, विच हैव डन बाय द 4 सेक्टर्स इन एन इकॉनमी. सो व्हाट आर द डिफरेंट 4 सेक्टर्स? फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर और द फॉर्म सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर, द लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो ये जो 4 सेक्टर है किसी भी इकॉनमी पे, ये 4 सेक्टर जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पर, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी वो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. तो इसमें क्या क्या हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो इसके थ्रू जो भी आता है, सो दैट वन इज GDP एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट. ठीक है, तो क्या आप देखा हम लोग ने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा कि फाइनल एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है, ऑन दी basically in the expenditure method we have studied the final expenditure on the various goods and services which have been done by the 4 sectors which prevails in the any economy. And what are the different 4 sectors? First one is household sector, producer sector, government sector and the rest of the world. ये जो 4 sectors हैं वो जो भी expenditure कर रहे हैं basically on the final expenditure, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज स्टेप्स फॉर द एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम. सो व्हाट इज द स्टेप्स फॉर द कैलकुलेटिंग द स्टेप्स
steps for estimating national income. national income. सो हम लोग डिफरेंट स्टेप्स क्या लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. तो सबसे पहले दैट वी हैव टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक यूनिट्स incurring final expenditure. What are the different? First one is that is identification of economic unit incurring final expenditure. फाइनल एक्सपेंडिचर. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किसका? इकोनॉमिक यूनिट का जो इनकरिंग क्या कर रहा है? फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है. ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट का मतलब कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक यूनिट्स हैं. मतलब इकोनॉमिक यूनिट होने का मतलब है कि जिस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं से इनकम क्या होगी? जनरेट होगी. ठीक है, तो उसमें हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक यूनिट हैं जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. उसमें सबसे पहले आपका वही सेम अगेन हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर, and the last one is rest of the world. ओके, यही 4 सेक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं. ठीक है, सेकेंड आपका आ गया दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. अब बात इसमें हो रही है कि ये फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करता है. ठीक है, उसको क्लासिफाई करना, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर. तो इसमें देखेंगे कि ये जो फाइनल एक्सपेंडिचर है तो बेसिकली इट इज डन बाय दी 4 सेक्टर. जो भी हम लोगों ने 4 सेक्टर का नाम देखा, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब इसमें देखिए एक सिंपल सा जीडीपी एमपी का एक फॉर्मूला होता है, शॉर्ट पे देते हैं, देन वी विल इलैबोरेट इट. दैट इज जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑफ द सी. व्हाट इज सी? सो सी इज द consumption expenditure which is done by the household sector. So इसको बोलते हैं हम लोग C को प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. Here C stands for the consumption. यहाँ पे जो सी है उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन बोलते हैं. तो ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? इट इज डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर करता है. नेक्स्ट हम जब बात करते हैं दैट इज आई स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट. सो इसको बोलते हैं इसको हम लोग देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर. इसको बोलते हैं आई स्टैंड्स फॉर दी. देखिए एक चीज़ है आई स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को एक टर्म हम लोग और यूज़ करते हैं दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. तो आई से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक
domestic capital formation. Gross domestic capital formation is for the I. और ये कौन करता है? It is done by the producer sector. ये प्रोड्यूसर सेक्टर करता है। नेक्स्ट है आपका दैट इज जी। जी इज स्टैंड्स फॉर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का क्या लिखते हैं हम लोग? दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है तो, और ये हाँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर इसको करती है ना। एंड द लास्ट वन इज दैट इज एक्स माइनस एम। सो हियर एक्स डेनोट द एक्सपोर्ट एंड एम डेनोट द इम्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जिसका क्या कहते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को। एंड दिस वन इज डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको ये कौन करता है? इट इज डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको करती है, ठीक है। ये क्या है? इसका एक बेसिक जिस्ट है, जो इसी को हम लोगों को क्या करना है? स्टडी करना है वन बाय वन। हम लोग देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, गवर्नमेंट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, और नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं। सो इन चारों का समेशन किसके इक्वल होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है। सो जीडीपी एचएमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड होता है। कह रहा है कि प्राइवेट फाइनेंस इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द हाउस होल्ड एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। इसमें ये जो भी मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कौन परचेज कर रहा है? बेसिकली परचेज बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। जो ऐसे एनपीओ जिसको बोलते हैं जो प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन नहीं है, दे आर सर्विंग हाउस होल्ड, जो वो हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, किसी भी पीरियड 1 ईयर के। सो परचेज ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन द करेंट ईयर, कोई भी प्रोड्यूस हो रही करंट ईयर में बाय द कंज्यूमर्स एंड द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट की बात हम लोग करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। नेशनल की बात नहीं कर रहे। So direct purchase made abroad by the resident household during their foreign travel, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट परचेज कर रहा है जो अब्रॉड में हो रहा है बाय द रेसिडेंट हाउस होल्ड, कोई भी जो रेसिडेंट जो हाउस होल्ड है किसी भी फॉरेन ट्रैवल में, तो वो क्या होगा? ऐड होगा। और कुछ भी हम लोग डायरेक्ट परचेज कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट कर रहा है, फॉरेन टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट, तो वो क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में? दैट इज वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन द काइंड, गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड, जो भी गिफ्ट हम लोग रिसीव कर रहे हैं बाहर से, और फिर इम्प्यूटेड रेंट हो गया, फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी प्रोवाइड होता है बाय द नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस दोज हु आर सर्विंग द हाउस होल्ड। So these all items included in the private final consumption expenditure. Basically, this expenditure is done by the household and the non-profit institution which is serving for the household. Next आता है आपका that is government final consumption expenditure. So it is incurred by the general government
टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स ऑफ द पीपल, जो भी कलेक्टिव वांट्स हैं पीपल के उसको सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, ऑर्डर एक्सेट्रा, कि गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, हेल्थ पे कर रही है, एजुकेशन पे कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रिपेयर करने के लिए कर रही है। सो दीज एक्सपेंडिचर इज डन बाय दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इंक्लूड्स, ओके, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल formation. Okay. So it is equal to the gross domestic fixed capital formation, fixed capital formation plus net change in stock, net चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू द ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक। नेट चेंज इन स्टॉक हाउ वी कैलकुलेट, वी नो वेरी वेल, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और ये जो सारे आइटम्स हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट चेंज इन स्टॉक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट चेंज इन स्टॉक। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी बिजनेस फिक्स असेट्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फिर आता है आपका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी रेसिडेंशियल जो भी हाउसेस हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, उन पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और क्या हो रहा है कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है और डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सारे किस में आ जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज इन स्टॉक, सो इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और इसमें एक आता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, या कि जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक गुड्स पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन किसका कर रही है, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, हेल्थ पे प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन पे प्रोवाइड कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे कर रही है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज डन बाय दी बोथ, प्राइवेट सेक्टर भी करता है और पब्लिक सेक्टर भी करता है। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में GDCF एग्जैक्ट मतलब दे दिया है तो कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्टली ले लेंगे। बट क्वेश्चन में अगर आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करना है और हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के इक्वल करना है, तो हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, नेट चेंज इन स्टॉक। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द GDP एट MP का क्या है आपका, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो भी हम लोग का बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है और जो हम बाहर जो हम क्या करें, बाहर जो हम भेज रहे हैं और जो हमारी कंट्री में गुड्स आ रहे हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेट एक्सपोर्ट। So this one is your formula of your GDP at MP. So through which we can calculate the value of the GDP and MP. Next that we have to calculate, that is measurement of the national income. So first step and the second step we have already discussed. Third step that we are going to discuss, that is measurement of the national income. Measurement of national income, that
NNP at FC, net national product at factor cost, NNP at FC. Okay, so you know very well that we have already calculated the value of GDP at NP. So NNP at FC is equal to GDP at NP. So we have to convert it into net. So in that case we have to subtract the depreciation, minus depreciation, then we have to convert it into the national, and here we have domestic, in that case plus NFIA. NFIA means net factor income from abroad. Next, that we have to convert it into factor cost and the market price. So minus NIT. NIT is net indirect tax. Okay, so through which we can calculate the value of the NNP at FC. Okay, so through which we can calculate the value of NNP at FC, which is equal to GDP at NP minus depreciation minus NIT, that is net indirect tax. Okay? So इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, NNP at FC. ओके, अब क्या करेंगे इसके अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम लोग GDP at NP को निकाल सकते हैं जब आपके डिफरेंट आइटम्स क्या होंगे, गिवन होंगे. Okay, so first of all we have discussed what are the different precautions that we have to take in while calculating the national income by expenditure method. कि कौन कौन से ऐसे precautions हमें लेना है, जैसे हम लोग ने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन से ऐसे precautions हैं जो हमें लेना है. तो अब एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्या हैं, डिफरेंट precautions हैं जो हमें लेना है while calculating the expenditure method. The next topic is precautions. Precautions for estimating national income. ओके, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें कैलकुलेट करते टाइम लेना है. तो इसमें सबसे पहला है, देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट कॉजेज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हम लोग इसमें क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे हो रहा है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एज न्यू सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड. ठीक है, जो भी सेल हम लोग कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग कभी भी कैलकुलेट उसकी वैल्यू को नहीं लेते, बट उस पर जो भी कमीशन मिलेगा, ठीक है, जो भी कमीशन मिलेगा ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, that will be included while calculating the national income. Third one is, so these all are the that will be included. ये सारे वो सारे आइटम्स हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड करेंगे. ठीक है, फिर है एक्सपेंडिचर ऑन दी ब्रोकरेज ऑफ दी शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कि चाहे वो हम कोई भी ब्रोकर्स पे जो भी कमीशन मिल रहा है, ब्रोकर्स को कमीशन मिल रहा है, न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स को, वेदर दे आर ओल्ड और द न्यू, उसको भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे. इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग खुद के बनाए हुए गुड्स प्रोडक्शन पे, ओन अकाउंट प्रोडक्शन पे कर रहे हैं, वो भी इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्या है आपका, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड. आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, सो फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स. सो एक्सपेंडिचर जो भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे कर रहे हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं. नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन दी
ट्रांसफ़र पेमेंट कि जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने पे, पेंशन देने पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी भी वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। और एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंट अदर सिक्योरिटीज, जो भी अदर सिक्योरिटीज है सेल एंड परचेज उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे।